Hello students, today we are going to start our first chapter of class 10 mathematics, that is real numbers. Okay, so first of all, what is the introduction of real number? There can be so many definitions for real number, but the most important, or we can say the most basic definition of real number is a real number is any number that can be represented on a number line, or you can say in place of number line real axis. Clear? It means एक ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, वैसा नंबर को रियल नंबर कहा जाता है. Real number are of two types. One is called rational and the other one is called irrational numbers. So there are basically two types of real number, that is real numbers, rational numbers and irrational numbers. What are rational numbers? A number in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. This is the definition of rationals. Okay, what are irrational numbers? A number which cannot be written in this form is called irrational number. But the better definition for irrational number is if a number can be expressed either neither as terminating nor as repeating, neither terminating nor repeating, then it is regarded as irrational number. एक नंबर जो ना तो रुकेगा और ना ही रिपीट करेगा, जब हम उसके डेसिमल एक्सप्रेशन को लिखेंगे तब वो irrational नंबर कहलाता है. ठीक है. Now again, this definition of real number is good but not good enough. The best definition of real number is a number whose square is non-negative. एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर यदि करेंगे और वो नॉन निगेटिव हो जाए. नॉन निगेटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए. यदि किसी नंबर के का हम लोग स्क्वायर करते हैं और वो पॉजिटिव या जीरो हो जाता है तो वो नॉन निगेटिव कहलाएगा, यानी कि वैसा नंबर रियल नंबर कहलाएगा. ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव is called real number. So this is the definition 1, जो कि एक काम चलाओ डेफिनेशन है, और ये जो है डेफिनेशन 2 है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कुछ एग्जांपल से. सपोज रूट 2, you have some doubt that whether root 2 is real number or not. So just simply do the square of root 2. root 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2. Clear? And 2 is clearly positive. It means it is a real number. 2 is not real. 2 is also real, but we are discussing on the reality of root 2. Again, another example. Root under minus 3. Root under minus 3 is real or not? It is not real. Why? Because if you do the square of root under minus 3, it will become minus 3. It is a negative number. But what we want? We want non-negative number. When you square any number and get non-negative number, then only the number is regarded as real number. Clear? It means root under minus 3 is not a real number. Why? क्योंकि इसके स्क्वायर करने पर हमको नेगेटिव नंबर मिल जाता है. That's why. So this is the basic logic of reality of any number or real number. Okay. Now in class 10th, what we have is, pause करो. Okay, now for our class 10th syllabus, the first topic is fundamental theorem of arithmetic. We have to focus more on that topic rather than on discussion of whether a number is real or not. So our first topic is fundamental theorem of arithmetic.
The word arithmetic means playing with numbers. Whenever you do operation with numbers only, like addition, subtraction, multiplication or division, this branch in mathematics is regarded as arithmetics. So what is the fundamental theorem of arithmetics? To understand this theorem, first of all you have to know the meaning of two types of number, that are prime number and composite number. So what are primes and what are composites? These are very basic things. We have studied all these topics in your previous classes also. Prime number is a number which has only two factors, that is the number itself and one. एक ऐसा नंबर जिसका केवल दो फैक्टर है, वन और वह नंबर खुद, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7 and so on. Clear? One cannot be regarded as prime or composite because one only has one factor, that is itself and one itself. तो कम से कम दो फैक्टर आना चाहिए तब वो प्राइम बनेगा. तो वन के पास सिर्फ एक फैक्टर है, तो ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है. क्लियर? तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है कहां से? 2 से, फिर 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन. वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट 2 is the only prime number which is even. Rest of the prime numbers are odd. It is very clear. Now what are composite number? So any number which has more than two factors, that is दो फैक्टर तो हर नंबर को होता है, वन और वह नंबर खुद. दो से यदि ज्यादा फैक्टर है तो वो कंपोजिट होगा, और अगर सिर्फ दो ही फैक्टर है तो वह प्राइम होगा. ये इसका बेसिक डेफिनेशन है. Now why I am explaining these two numbers? Because in fundamental theorem of arithmetic the statement says, what is the statement of fundamental theorem of arithmetic? The statement says that any composite number can be uniquely expressed as product of primes regardless of the order in which they exist. इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग यूनिकली का मतलब होता है एक ही तरीके से, दूसरा कोई तरीका नहीं होगा. किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. किस रूप में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में. क्लियर? रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर इन विच दे एग्जिस्ट. उसका ऑर्डर मायने नहीं रखता है. इसका मतलब ये हुआ, सपोज इफ वी हैव एनी कंपोजिट नंबर से 12, then this composite number can be expressed as the product of prime numbers. How? You can do 2 multiply 3. This will give 12. You can see 2 and 3 both are primes. It means a composite number can be expressed, इसको दर्शाया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में. तो ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हो गया. यूनिकली वर्ड का मतलब ये हुआ that if some other student tries to find the product, tries to find the factor of 12, he also get the same as factors. उसको भी 2 और 3 ही फैक्टर में मिलेगा. और लास्ट में ये जो बात लिखा हुआ है रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर, इसका मतलब हुआ यू कैन आइदर राइट दिस और यू कैन राइट 3 multiply 2 multiply 2 और यू कैन राइट 2 multiply 3 multiply 2. So it means that there are so many ways of expression. एक्सप्रेस करने का तरीका भले अलग हो सकता है, बट जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं और जो फैक्टर्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, यूनिक होंगे, वो अलग नहीं होंगे. यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इसका यूज काफी चीजों में है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन दैट एक्सप्रेस 421 or you can say 422 as product of primes. This is a question कि आपको इस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में दर्शाना है. तो इसके लिए हम करेंगे क्या? वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन. और एनी क्वेश्चन बिलोंगिंग टू दिस टॉपिक वी हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि उस नंबर को लिख देना है और फिर प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, ओनली प्राइम नंबर्स, इस तरह से जो कि इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दो. सपोज यू हैव डिवाइडेड इट बाय 2, यू गेट 2 2 जा 4, 2 1 जा 2,
2 1 जा 2। क्लियर? नाउ ये फिर से तुम इसको किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो? 211 कैन बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर और नॉट? नो फैक्टर? 7 7 3 is 21, it will not divided. 13 13 1 is 13, again 81, not divided. Clear? It means it is a prime number. So 422 can be expressed as 2 multiply 211. Okay, clear or not? So you can see both are primes and this is a composite number. Clear? So 422 can be expressed as product of primes. This is what fundamental theorem of arithmetic is. You can never write multiply 1 because 1 is not a prime number. Clear? This is the main motive of this theorem. Okay? Okay. Now we will deal some questions which is based on the fundamental theorem of arithmetic. एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है एंड शो दैट, और दर्शाना है कि जो रिजल्ट आएगा सिंप्लीफाई होने के बाद वो एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर? ओके, अभी हम लोग इसको डायरेक्टली कंपोजिट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भले प्राइम नंबर्स बहुत सारे मल्टीप्लाई हुए हैं बट यहाँ पर बीच में एक प्लस का साइन है, इस क्वेश्चन में भी बीच में एक प्लस का साइन है, तो हम लोग 1 by 1 जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. So the question is 5 multiply 11 multiply 13 plus 5. What we can do is taking out 5 as common. 5 कॉमन हो गया, यहाँ कितना बचा? 11 11 into 13 plus 1 like this. So 5 into 11 into 13, how much? 13 1 is 13, 143 plus 1. Okay, so 5 multiply 144. Clear? Now you can see that there is a 5, there is 144. It means this number whatever it is, it has at least 2 factors. ये जो नंबर है इसको हमने सिंप्लीफाई किया और ये आया, ठीक है। अब ये नंबर जो है अगर ये 5 इंटू समथिंग के फॉर्म में है, इसमें कोई भी एक नंबर इस नंबर के अलावा है, जैसे 5 है, 144 है, इसका मतलब ये जो नंबर ये 144 से भी डिविजिबल होगा या ये नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब 5 और 144 तो कम से कम इसका फैक्टर जरूर होगा। इट मींस दैट दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। ये नंबर का खुद के और 1 के अलावा कम से कम 2 फैक्टर निकला। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये समझ में हमको आ चुका है दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, नाउ सिमिलरली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। इस क्वेश्चन में कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई है, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसमें भी हम लोग 5 को कॉमन लेंगे। इस वाले क्वेश्चन 5 को जब कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा? 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 5 चूंकि कॉमन हो चुका है तो यहाँ पर 1। ओके, सो 5 इंटू और ये जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6, ओके, 6 6 जा 36 एंड 36 4 जा 144। ओके, 144 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 145। इस नंबर में भी हम देख पा रहे हैं कि ये नंबर भी एक्सप्रेस किया जा रहा है, भले ये प्राइम नंबर नहीं है बट 2 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में तो एक्सप्रेस हो रहा है। इसका मतलब है कि इस नंबर का 5 या 145 फैक्टर होगा क्योंकि इसको हमने एक्सप्रेस किया दोनों के प्रोडक्ट के रूप में। इज इट क्लियर? तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे कटेगा, 145 से यदि डिवाइड करेंगे वो भी डिविजिबल होगा। इट मींस दैट दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज आल्सो कंपोजिट। और यही हमको साबित भी करना था कि जो रिजल्ट आ रहा है वो एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन, very simple question. Find the HCF and LCM of two numbers 612 and 1314. इस नंबर का HCF और LCM निकालना है। पहले भी जूनियर क्लासेस में बहुत सारे मेथड से बताया जाता है बट यहाँ हम लोग को फिर से फोकस करना है किस पर? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ प्राइम नंबर, सो दिस प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अगेन 1314 is also a composite number, so it can be also expressed in the form of product of primes. So what we have to do first is prime factorization of both the numbers separately. So when we do the prime factorization of 612, what we get? 2 3 is 6, 2 6 12, 2 1 is 2, 2 5 10, 2 3 6, 3 5 is 15, 3 1 is 3 and then 3 and 17.
So what is the prime factorization of 612? That is 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 17. Clear? So 612 can be expressed in the product in the form of product of primes. What we have to do is that we have to write the factors in terms of exponent. एक्सपोनेंट के टर्म में इसको हम लोग को लिखना है. 2 पे 2 बार है तो 2 पावर आ जाएगा. 3 कितनी बार है? 2 बार है 2 पावर. 17 एक बार है 1 पावर. ओके. सो यहां पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहां पर अप्लाई हुआ? यहां पर अप्लाई हुआ. कंपोजिट नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में इसको लिख सकते हैं. जब तक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखोगे नहीं तब तक एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकलेगा. इट मींस दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अप्लाइज डायरेक्टली इन फाइंडिंग एचसीएफ और एलसीएम. तो एचसीएफ और एलसीएम बिना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगे नहीं बन सकता है. जूनियर क्लासेस में हम लोग ये करते हैं, बट हमें ये पता नहीं होता है कि हर कंपोजिट नंबर को इस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है. और यहाँ क्लास 10th में इसी को थ्योरम बना दिया गया है. ओके, नेक्स्ट 1314 का फैक्टराइजेशन करना है. ओके, 1314 इफ यू डिवाइड बाय 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, अगेन बाय 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, अगेन बाय 3, 3 7 जा 3 3 जा. ओके, नाउ 73 is a prime number. Okay, so 1314 can be expressed as 2 multiply 3 multiply 3 multiply 1 7, नहीं सॉरी 73 ओनली. ओके, सो इफ यू राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 multiply 3 पे पावर 2 multiply 73. So this is the prime factorization of 612 and 1314. Now what is our motive? What is our aim? Our aim is to find HCF and LCM. So what we have to do is that for HCF of these two numbers 612 1314, the simple strategy is we have to select common factor from both the numbers with the least power. That is 2 is a factor present in both. Okay, 2 is a factor present in both. What is the least power of 2 in both of them? Here it is 1, here it is 2. So we have to choose the least power 2, that is 2 पे power 1 multiply. फिर 3 में भी हम लोग कौन सा सेलेक्ट करेंगे? उस 3 को सेलेक्ट करेंगे जिस पर कम पावर हो. इस पर 2 पावर, इस पर भी 2 सेम है तो कर सकते हैं 3 पावर 2. ओके, नाउ हियर 17 पे पावर 1 इज existing, but here there is no 17, तो 17 नहीं ले सकते हैं बिकॉज यहां पर HCF में ये ध्यान रखना है, LCM और HCF में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि HCF निकालते वक्त सिर्फ उसी नंबर को सेलेक्ट करना है जो दोनों में हो. तो 17 और 73, 17 इसमें है, इसमें नहीं. 73 इज प्रेजेंट इन दिस नंबर बट नॉट इन दिस. सो 2 और 3 सिर्फ कॉमन फैक्टर है दोनों का. तो जो लीस्ट पावर होगा उस वाले 2 को या लीस्ट पावर वाले 3 को सेलेक्ट करेंगे. तो हमने सेलेक्ट कर लिया है. व्हाट विल बी द आंसर? 3 पे पावर 2 9, 9 2 जा 18, 18 एचसीएफ आ गया. एलसीएम के लिए क्या करेंगे? फॉर एलसीएम ऑफ 612 एंड 1314 व्हाट वी हैव टू डू? इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि इसमें हम जो कॉमन है, जो दोनों में है, उस फैक्टर को पहले सेलेक्ट करेंगे. बट दिस टाइम वी चूज द हायर पावर, ज्यादा पावर वाले को चूज करना है. मींस 2 पे पावर 1 यहां है, 2 पे पावर 2 यहां है, यू विल सेलेक्ट 2 पे पावर 2. ओके, मल्टीप्लाई 3 दोनों जगह है तो हाईएस्ट पावर कौन सा हो गया? 3 पे पावर 2. ये तो सेम ही है तो 3 पावर 2 लेना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 17? नाउ इफ यू कैन थिंक ऑफ दिस, अगर ये 17 है सिर्फ तो इसका मतलब ये 17 पे पावर 1 है. यहां 17 नहीं है तो तुम ऐसे लिख सकते हो 17 पे पावर 0. क्लियर? क्योंकि 17 पावर 0 का मतलब 1 होता है. 1 मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसी तरह से 73 है यहां पर, कुछ नहीं तो पावर 1 है. यहां पर 73 नहीं है, जबरदस्ती यदि लिखना चाहते हैं 73 तो यहां पावर कितना देना पड़ेगा? 0. तो 17 यदि दोनों में है अब तो उसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1. तो यहां लिखेंगे 17 पे पावर 1. 73 दोनों में तो है मगर उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 73 पे पावर 1. ये काम अगर आप एचसीएफ में भी करेंगे तो उसमें 17 दोनों में रहेगा और उसका लोएस्ट पावर 0 है तो आप 17 पावर 0 यहाँ लिख सकते हैं, फिर 73 पावर 0 यहाँ लिख सकते हैं. लेकिन दोनों का वैल्यू 1 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग एचसीएफ में जो कॉमन नहीं होता उसको नहीं लेते. क्लियर हो गया? ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू? 2 टू द पावर 2 दैट इज 4. ओके, 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9 into 17 into 73. What is the value? What is the value? 44676. This is the value of LCM and this is the value of
HCF. Clear? Okay. Now last thing, but not the least thing. One very famous result is here. Result is HCF for any two numbers. For any two numbers, we have a concept that HCF of two numbers multiplied by LCM of the same two numbers will be equal to the product of टू नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास दो नंबर है तो उस दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होगा उस दोनों नंबर के HCF मल्टीप्लाइड बाय उस दोनों नंबर के LCM के। एग्जांपल के लिए यहाँ पे HCF कितना है 18 है, सो राइट 18 मल्टीप्लाई LCM कितना है 4 4 6 7 6 4 4 6 7 6 और नंबर्स कौन कौन से हैं 612 एंड 1314। तो पहले हम इक्वल नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसा करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM यहां पर, और फिर बाद में हम लोग ये फाइंड करेंगे दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 612 मल्टीप्लाइड बाय 1314। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करिए और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करिए, ये दोनों ही वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। ओके इसको यदि हम करके देखना चाहें तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं। फॉर दिस वी हैव टू इरेज दिस पार्ट। क्लियर? सो 44676 multiplied by 18, what will be the value? You can simply multiply those. Okay, तो ये जो हमारा HCF और LCM आया इसका प्रोडक्ट निकला कितना 804168। क्लियर है 804168। Now what we have to do, we have to find the product of two numbers। जो दो नंबर दिया गया था उसका प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे 1314 इंटू 612। ये बहुत इजी मल्टीप्लीकेशन है, डायरेक्ट हो जाएगा 4 2 जा 8 और इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे 262। ओके 1 this is 4131 again 4 6 24 4 2 6 1 6 2 8 okay, so you can see it is again 804168. It means the statement is correct that for any two numbers the product of the two number will be equal to the HCF of both number multiplied by the LCM of both number। और इससे रिलेटेड काफी सारा क्वेश्चंस होता है जो हम लोग नेक्स्ट अपना जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग उसको कवर करेंगे। तो ये फर्स्ट क्लास था चैप्टर 1 का। क्लियर? इसलिए हम लोग इतना सारा कुछ डिस्कस किए। Now in the next class we will study some more problem, we will solve some more problem that is based on the fundamental theorem of arithmetic, because in class 10 you have to solve some real life problems which are based on fundamental theorem of arithmetic। तो हमारा प्राइमरी मोटिव है कि वो जो रियल लाइफ का कुछ सवाल है वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसको कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हेल्प से सॉल्व करेंगे, HCF LCM फाइंड करके सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करना है। क्लियर है? Okay, that's what for this lecture. We'll meet soon for some good questions based on these topics. Thank you.